So hello everyone. At this class I am going to discuss numericals, that is questions based on compound angles, multiple angles, submultiple angles and transformation. Okay, in the last class I have given all the formulas like compound angle formula, multiple angles, submultiple angles, transformation formula with derivations I have given. Okay, so derivations के साथ मैं सब formulas अभी complete कर दिया last class में. So now I am going to discuss the numericals, that is from exercise 3.3 NCERT exercise 3.3. ठीक है, I have discussed exercise 3.1 questions. I have discussed questions from exercise 3.2. Now today I am going to discuss questions from exercise 3.3, and in exercise 3.3 questions are based on compound angles, multiple, submultiple angles and then transformation related formula. Okay, so the first क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, ठीक से देखना है क्या है दिया गया. इसमें तो पढ़ने का कोई बात ही नहीं है क्योंकि these are not word problems. Okay, these are trigonometric direct equations. So the first question is prove that sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4, this is equal to minus half. You have to prove this one. ये क्वेश्चन को और एक टाइप में दे सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, यहाँ पे प्रूव दैट बोल के एनसीईआरटी में है तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना पड़ेगा. लेकिन ये क्वेश्चन को घुमा के ऐसा भी दे सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मतलब राइट हैंड साइड का वैल्यू फाइंड आउट करने दे सकता है. ठीक है, सो 1 मार्क का क्वेश्चन होगा अगर ऐसा क्वेश्चन होगा. दीज आर स्मॉल क्वेश्चंस. ओके, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी बोला कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स, कंपाउंड एंगल्स, बट यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं लिखा these two questions are neither related to compound angle nor multiple sub multiple angle nor transformation. ये जैसे कि सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया था एक्सरसाइज 3.2 का, ऑलमोस्ट वैसा टाइप का ही क्वेश्चन है. ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन. सो टेक द लेफ्ट हैंड साइड. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन. लेफ्ट हैंड साइड sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4. यहां पे पहले एक बात मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे sin square pi by 6 दिया गया है, स्क्वायर है. जनरली वी नो द वैल्यू ऑफ sin pi by 6, cos pi by 6, tan pi by 6. लेकिन अगर स्क्वायर होगा तो क्यों सिर्फ स्क्वायर, अगर क्यूब होगा तो, या फिर टू दी पावर 4 होगा तो, या फिर टू दी पावर 10 होगा तो, देन हाउ कैन वी फाइंड दोज वैल्यूज. ये बात याद रखना पड़ेगा. साइन एन थीटा, एन मीन्स यहाँ पे एन एक्सपोनेंट में है. ठीक है, यहाँ पे एन एक्सपोनेंट में है तो साइन टू दी पावर एन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होल थिंग टू दी पावर एन. Okay, you have to remember this formula. Sin to the power n theta can be written as sin theta whole thing to the power n. Not only in case of sine, for any trigonometric function we can apply this condition. Okay, sin to the power n theta is equal to sin theta whole thing to the power n, where n belongs to natural numbers. Okay, where n belongs to natural numbers. ठीक है, तो ये बात याद रखना पड़ेगा. दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस. टोटल हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर? 6 फंक्शंस. सो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. ओके, sin to the power n theta can be written as sin theta whole thing to the power n. So now I am going to apply that condition. Sin square pi by 6 can be written as sin pi by 6 whole square, yes, plus cos square pi by 3 can be written as cos pi by 3 whole square minus tan square pi by 4 can be written as tan pi by 4 whole square. Yes, now we can put the values easily. Pi by 6 मतलब कितना डिग्री? 30 डिग्री. What is the value of sin 30 degree? The value of sin 30 degree is 1 by 2. So 1 by 2 whole square plus the value of cos pi by 3. Pi by 3 मतलब 60 degree. Cos 60 degree is also half. So 1 by 2 whole square minus
the value of tan pi by 4. Pi by 4 means 45 degree. The value of tan 45 degree is 1 only. So it is 1 square. So 1 by 4 plus 1 by 4 minus 1. If I take LCM, LCM is 4 only. That is 1 plus 1 minus 4. So this is equal to minus 2 by 4, which is equal to minus half. This is equal to right hand side. Okay. So in this way we can prove this type of question. लेकिन proof को छोड़ के भी क्वेश्चन में बोला कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ऐसा भी दे सकता है। जो भी क्वेश्चन हो, ये एक्सप्रेशन का वैल्यू माइनस हाफ ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन को अगर प्रूफ करने के लिए देगा तो, या फिर फाइंड आउट द वैल्यू भी पूछेगा तो आंसर विल बी माइनस हाफ ओनली। बट द प्रोसीड्यूर यू कैन चेक हियर। ओके, sin square theta can be written as sin theta whole square. Cos square theta can be written as cos theta whole square. Tan square theta can be written as tan theta whole square. After that, you just put the values of these angles. Okay, so this is solution number 1. Next solution number 2. ऐसा एक मॉडल का सिमिलर पैटर्न का मैं दो क्वेश्चन से लिखा, सो दैट अगर फर्स्ट क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आया तो सेकंड क्वेश्चन भी इसलिए मैं और एक बार एक्सप्लेन करूंगा, तो फिर क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगेन प्रूव दैट 2 sin square 3 pi by 4 plus 2 cos square pi by 4 plus 2 sec square pi by 3 is equal to 10. Once again, right on the left hand side, this is solution number 2. 2 sin square 3 pi by 4 plus 2 cos square pi by 4 plus 2 sec square pi by 3. This is the left hand side part. Okay, now 2 into, again sin square 3 pi by 4 can be written as sin 3 pi by 4 whole square plus 2 into, better you take 2 common तो फिर और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, so cos square pi by 4 can be written as cos pi by 4 whole square. Sec square pi by 3 can be written as sec pi by 3 whole square. I have taken 2 common, so 2 into, now sin 3 pi by 4. 3 pi by 4 का वैल्यू क्या होगा? This is in radian measure. Actually here all the angles are in radian measure, because जो एंगल in terms of pi में होता है वही एंगल को रेडियन मेजर एंगल बोला जाता है। ठीक है, so all the 3 angles are in terms of radian measure. So do one thing, convert this radian measure into degree measure by putting pi is equal to 180. So if I put pi equal to 180, then it will be 3 into 180 by 4. So it is 45, 135 degree. तो sin 135 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है? You know how to find 135 degree. So 135 degree can be written as 90 plus 45 also. Yes, 135 degree can be written as 90 plus 45. 90 को फिर 1 into 90 plus 45 भी तो लिख सकते हैं. You know how to find the values of these angles, right? एक्सप्लेन किया था ये सब जब ASTC रूल रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किया था एक्सरसाइज 3.2 में. Okay, so 135 can be written as 90 plus 45. Again this 90 can be written as 1 into 90 क्योंकि 1 into 90 में एक्सप्रेस करना है plus 45. Now this is odd number, 1 is odd number, so since it is odd number so sign will become cos. Now 135 degree, that is 90 plus 45, lies in which quadrant? Second quadrant. According to ASTC rule, in second quadrant sign is always positive. So this will be only cos 45 degree and the value of cos 45 degree is 1 by root 2. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म का वैल्यू 1 by root 2. I am not going to show these steps here. ये सब स्टेप्स ना रफ में करना है, रफ में करना है, मेन क्वेश्चन में शो नहीं करना है क्योंकि ये सब क्वेश्चन हार्डली टू कैरी 1 मार्क, 1 से ज्यादा तो नहीं देगा. ठीक है, तो इसीलिए इतना स्टेप्स मेन क्वेश्चन में, मेन सॉल्यूशन में शो मत करना, वो सब रफ में करना है. ठीक है, तो ये सॉल्व करके मुझे 1 by root 2 मिला, तो मैं ये 1 by root 2 डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देता हूं. सो द वैल्यू ऑफ साइन 3 pi by 4 इज 1 by root 2. लेकिन होल स्क्वायर है तो वो तो देना ही पड़ेगा, होल स्क्वायर होगा तो होल स्क्वायर देना है, होल क्यूब होगा तो होल क्यूब देना है, जो है वही देना पड़ेगा. प्लस
the value of cos 45 degree we know 1 by root 2 whole square plus pi by 3 means 60 degree. The value of sec 60 degree. Sec is the reciprocal of cos. If cos 60 is 1 by 2, then sec 60 will be 2 only. So 2 square, that is 4. Okay. So 2 into 1 by 2 plus 1 by 2 plus 4. That is 2 into, here if I take LCM, LCM will be 2 only. 1 plus 1 plus 8 divided by 2. So 2 cancel. This is equal to 10, which is the right hand side. Okay. So बाकी दो टर्म का वैल्यू हम लोगों को डायरेक्ट पता है, इसीलिए डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया. तो 3 पाई बाई 4 का जो वैल्यू है, अगर डायरेक्ट नहीं पता होगा तो रफ में ऐसा करके फिर यहाँ पे पुट करने से भी होगा. ठीक है. तो क्वेश्चन दो टाइप का हो सकता है. ये सब क्वेश्चन आइदर प्रूफ करने के लिए दे सकता है, नहीं तो फाइंड द वैल्यू. जनरली बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन में ये सब फाइंड द वैल्यू बोल के ही देता है, क्योंकि प्रूफ करना है तो थोड़ा सा तो आइडिया मिल जाता है. हाँ, ऐसे ऐसे करने से राइट हैंड साइड आ सकता है. तो जनरली बोर्ड एग्जाम में ये फाइंड आउट द वैल्यू ऐसा ही देता है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट मॉडल. एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट मॉडल है 1 and 2. एक्चुअली दिस वन इज नॉट क्वेश्चन नंबर 2. अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 3.3 दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 4. सो आई हैव एक्सप्लेन्ड 1 and 4. So 2 or 3 similar type of question you have to try by yourself, those two questions. Okay. Next मॉडल का क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं. Now look at the next questions. That is question number 7. According to NCERT exercise 3.3, that is question number 7. Prove the following. Question number 7 क्या दिया गया है? 10 pi by 4 plus x by 10 pi by 4 minus x, which is equal to 1 plus 10x by 1 minus 10x whole square. प्रूफ करना है. तो चलो प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं. सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड 10 of pi by 4 plus x divided by 10 of pi by 4 minus x. So here I am going to apply compound angle formula. क्योंकि यहाँ पे जो एंगल दिया गया है, it is the combination of two angles, right? One is a 45 degree, another one is angle x, and between these two angles plus sign is there. प्लस हो या फिर माइनस हो, मतलब कंपाउंड एंगल ही तो है. ओके. जब दो या दो से ज्यादा एंगल को हम लोग ज्वाइन करते हैं by using plus or minus sign, then those angles are called compound angles. So here I am going to apply compound angles formula. So let us consider this one is say angle x and this is say angle y. Suppose then the formula of tan of x plus y. Apply the formula of tan of x plus y. Already I have given all these formulas. Okay. So tan of x plus y का formula क्या है? tan x plus tan y divided by 1 minus tan x into tan y. Okay. So here don't write y because here y is not given. Just according to formula I am telling that it is y. But don't write y. Okay. तो ये हो गया न्यूमरेटर का फॉर्मूला. मतलब न्यूमरेटर में जो फंक्शन दिया गया है वो उसका कंपाउंड एंगल्स का फॉर्मूला. अभी मैं डिनोमिनेटर में जो है उसका भी फॉर्मूला अप्लाई करना है. tan of x minus y का फॉर्मूला. tan of x minus y is tan x minus tan y divided by 1 plus tan x into tan y. 1 plus tan x into tan y. ओके. ये हो गया डिनोमिनेटर. देखो एक ही क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला यूज होगा बोल के ऐसा कोई बात नहीं है. यू कैन यूज मोर देन वन. डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है. तो यहाँ पे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में अलग अलग सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ. ठीक है. एंड बोथ द फॉर्मूलाज आर कंपाउंड एंगल रिलेटेड फॉर्मूलाज ओनली. सो नाउ दिस इज इक्वल टू 10 pi by 4. द वैल्यू ऑफ 10 pi by 4 इज 1 प्लस 10x divided by again the value of this is 1 minus again the value of 10 pi by 4 is 1 into 10x, that is equal to 10x only, divided by whole thing divided by. फिर डिनोमिनेटर में जाता हूं मैं. 10 pi by 4 1 minus 10x divided by 1 plus 10x. ओके. सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो फॉर्मूला अप्लाई किया उसका रिजल्ट ये है. अभी मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो फिर क्या होगा?
1 प्लस 10x, ये ऊपर आ जाएगा रेसिप्रोकल, ये जब ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके तो 1 प्लस 10x न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 1 प्लस 10x इंटू 1 प्लस 10x इज 1 प्लस 10x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x इंटू 1 माइनस 10x इज 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल नहीं करना है। कैंसिल क्यों होगा, डिवाइड है तो इसको जब ऊपर लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होने से ये तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो इसका मतलब 1 प्लस 10x ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस 10x इंटू 1 प्लस 10x इज 1 प्लस 10x होल स्क्वायर बाई 1 माइनस 10x होल स्क्वायर, एंड दिस इज द राइट हैंड साइड पार्ट ओनली। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल ओनली। ठीक है, दो फॉर्मूला अप्लाई करना है, tan of x प्लस y एंड tan of x माइनस y, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन। नाउ दैट सिंप्लीफिकेशन पार्ट इज अप टू यू ओनली। ओके, सिंप्लीफिकेशन पार्ट इज अप टू यू। So this is the solution number 7. Now number 8. नंबर 8 में भी प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है क्या, cot पाई प्लस एक्स। देखो कभी कभी ना क्वेश्चन में रेडियन मेजर भी दे सकता है या फिर डायरेक्ट डिग्री मेजर में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे दिया गया है रेडियन मेजर में पाई प्लस एक्स। So pi plus x lies in which quadrant? Pi means 180 degree. So 180 degree plus x lies in the third quadrant. So in third quadrant, cos is positive or negative? In third quadrant, according to ASTC rule, cos is always negative. This is solution number 8. Okay, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूं. सो दिस इज माइनस कॉस एक्स, ओके, इनटू कॉस ऑफ माइनस थीटा. ये भी बताया था, इसके बारे में भी बताया था, नेगेटिव एंगल्स के बारे में. यस, cos of minus theta is equal to cos theta only, that is cos x divided by sin 180 minus theta. Pi means 180 only, so 180 degree minus theta lies in the second quadrant, and in second quadrant sin is always positive according to ASTC rule, so this will be only, sin x. Cos 90 plus theta. Now 90 plus theta lies in the second quadrant, but 90 कैन बी रिटन एज 1 into 90, तो ये कॉस तो नहीं रहेगा, ये हो जाएगा साइन, तो दिस विल बी माइनस साइन एक्स. व्हाई इट इज माइनस साइन एक्स? बिकॉज 90 डिग्री प्लस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, बट इन सेकेंड क्वाड्रेंट अकॉर्डिंग टू ASTC रूल कॉस इज ऑलवेज नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू गिव हियर माइनस साइन, राइट? सो माइनस माइनस वी कैन कैंसिल फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. cos x into cos x, cos square x by sin x into sin x, sin square x. Now cos square x by sin square x is cot square x. Yes, we all know that cos x by sin x is cot x. So हो गया ये cot square x. सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रूफ दैट बोला, लेकिन दो स्टेप में ही खत्म हो गया. ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू cos 2 पाई प्लस एक्स होल इंटू cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है. ठीक है, ये क्वेश्चन में भी प्रूफ करना है. 1 है, राइट हैंड साइड में 1 है. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हाँ, ऐसा मॉडल का क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए. ठीक है, सो राइट हैंड साइड में 1 है, याद रखना, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू रब द राइट हैंड साइड. यू हैव टू प्रूफ ना, सो यू हैव टू प्रूफ मींस लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना पड़ेगा. तो राइट हैंड साइड में रब कर रहा हूं, 1 है तो मुझे 1 लाना पड़ेगा राइट हैंड साइड में. So this is the left hand side part. Question number 9. Left hand side part. Look at properly. Cos of 3 pi by 2 plus x. Cos of 3 pi by 2 plus x. चलो 3 pi by 2 plus x. 3 pi by 2 मतलब कितना डिग्री होता है ये तो पता होना चाहिए. तो फिर जाके हम लोग क्वाड्रेंट वाइज हम लोग चेंज कर सकते हैं वैल्यूज को या फिर फंक्शंस को. 3 pi by 2 means 270 degree, because if you put pi equal to 180 degree it will be 270 degree. Now 270 degree plus x lies in which quadrant? 270 degree तक होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, प्लस x मतलब
इट विल बी इन द नेक्स्ट क्वाड्रेंट, दैट मीन्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट. सो ये क्लियर हो गया कि 3π/2 प्लस एक्स होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में. अकॉर्डिंग टू ASTC रूल इन फोर्थ क्वाड्रेंट कोसाइन इज ऑलवेज पॉजिटिव. बट 270 it is an odd multiple of 90, right? You have to express 270 in terms of 90. Yes, so 270 can be written as a 3 into 90 and 3 is odd number. अगर odd multiple of 90 हुआ तो function that is a trigonometric function तो हमेशा change हो जाता है. cosine क्या हो जाएगा? sin हो जाएगा. So cos of 270 plus x is equal to sin x. Okay, now 2 into pi that is 360. 360 प्लस एक्स 360 डिग्री तक ही होता है फोर्थ क्वाड्रेंट. प्लस एक्स मतलब इट विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. जंप करके नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद तो फिफ्थ नहीं आता है, फोर्थ के बाद फिफ्थ, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, देन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो लाइक दिस इट विल गो. ओके, सो 360 प्लस एक्स मीन्स इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. अकॉर्डिंग टू ASTC रूल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द फंक्शंस आर पॉजिटिव. Now 360 it is even multiple of 90, right? 4 into 90. So in case of even multiple there will be no change in the trigonometric function. So this is equal to cos x only. Whole thing into now cot 3π/2 minus x. जैसे कि यहाँ पे 3π/2 plus x दिया गया था which is in the fourth quadrant. Now 3π/2 minus x it is always in the third quadrant. Now in third quadrant according to ASTC rule 10 एंड कॉट आर पॉजिटिव. तो ये कंफर्म हो गया कि ये फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होगा. बट अगेन 270 मीन्स इट इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ 90. सो अगर ऑड मल्टीपल हुआ तो कॉट विल बिकम 10. सो दिस इज इक्वल टू 10x प्लस कॉट 2π प्लस x विच मीन्स 360 डिग्री प्लस x फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव. And moreover 360 means it is an even multiple of 90, so there will be no change in the function. It is cot x only. Okay, so sin x into cos x, tan x can be written as again sin x by cos x plus cos x by sin x. Yes, so sin x into cos x, take LCM here, cos x into sin x, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x. ओके, सो sin x into cos x और नीचे भी यहाँ पे sin x into cos x है, कैंसिल हो जाएगा 1. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो 1. सो ये हो गया राइट हैंड साइड का वैल्यू. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऐसा मॉडल का क्वेश्चन ही चेक करना चाहिए. इट विल बी हार्डली 3 और 4 मार्क्स क्वेश्चन. ओके, 3 और 4 मार्क्स क्वेश्चन. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम एनी एक्सरसाइज, एक्चुअली जस्ट मॉडल बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि एक ही मॉडल का 4-5 क्वेश्चंस होगा, तो सेम मॉडल का 4-5 क्वेश्चंस सॉल्व करके मतलब एक्सप्लेन करके अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा. तो क्या होगा कि मैं एक मॉडल का अलग अलग मॉडल का क्वेश्चंस में डिस्कस करूं, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस द रिमेनिंग क्वेश्चंस. ठीक है, जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 4 डिस्कस किया, तो मतलब 2 और 3 भी सिमिलर मॉडल का है, तो 2 और 3 ट्राई करना है. वैसे ही यहां से मैं 7, 8, 9 अभी तक डिस्कस किया, तो बीच में जो 10 है और लाइक क्वेश्चन नंबर 5, 6 वो सब क्वेश्चंस ट्राई करना है. ठीक है, आई विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस आल्सो. ओके.